Hello everyone. Today we'll discuss the very important chapter of the chemistry, that is the classification of elements and and periodicity in properties. Right, this is one of the very important chapters of the chemistry, to study the elements, that how many elements we have in our chemistry, how we are on what properties it will depend, what are the physical and what are the chemical properties of these elements. Right, okay, so first is the introduction. Okay, now first question, why do we need to classify the elements? We all know we have one periodic table, right? We have one periodic table like this. Fine, we have one periodic table like this. Okay, and in this periodic table, in total, we have the 118 elements. But why do we need to classify all these 118 elements? The simple and क्लियर एक्सप्लेनेशन, ये सब कौन सी ऐसी चीज़ थी, हमें क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें क्लासिफाई एलिमेंट्स करने पड़े. हम 118 एलिमेंट्स को, हर एक एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ सकते. ये एक बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है. सो हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, जैसे जैसे एलिमेंट्स आते गए तो हमारे साइंटिस्ट उतने एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग नई नई पीरियोडिक टेबल बनाते गए. ओके, सो लास्ट में जो हमें एक पीरियोडिक टेबल मिली, वो हमें मिली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. राइट, ओके, तो हमें क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सबसे पहला रीज़न, टू स्टडी each and every element in detail. हमें एक सिस्टमेटिक स्टडी करने की उनको ज़रूरत थी, तो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हमें मिला जिससे हम हर एलिमेंट को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं. अब हमारे पास अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, अगर कुछ एलिमेंट्स हैं, सपोज 10 एलिमेंट्स का सेट है जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है, तो हम उन्हें एक ग्रुप में कंसिडर कर सकते हैं, अदर एलिमेंट्स को अलग ग्रुप में कंसिडर कर सकते हैं. राइट, सो इसलिए हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया ताकि हम उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से स्टडी कर पाएँ और बहुत ही ईजी तरीके से. बिकॉज 80% जो उनकी प्रॉपर्टीज होती है नियरली सिमिलर होती हैं. कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, वो भी हम डील करेंगे. ओके, इसलिए हमें डील करना पड़ा. ये केमिस्ट्री क्या है कि इट इज़ मतलब बिकॉज ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल ओनली द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री बिकम्स ईजी. Right, if we know the elements, okay, we know we have total 118 elements, but how to study them? Okay, each and every element it will take lot of time. Okay, so it is because of this periodic table means it is easy to study the chemistry. Right, okay, so sorting or classifying of materials is very necessary. Right, now the next part is why we are classifying. So how many total elements we have? Total we have the 118 elements. All the 118 elements are not natural elements. Okay, इसमें से क्या है, हमारे पास जो 92 एलिमेंट्स होते हैं, 92 एलिमेंट्स, ओके, वो क्या है हमारे दैट आर नेचुरल. ओके, वो है हमारे नेचुरल. बट जो हमारे 26 एलिमेंट्स हैं वो क्या है हमारे मैन मेड और सिंथेटिक, जो हम लेबोरेटरी वगैरह में प्रिपेयर करते हैं. ओके, सो इन 118 एलिमेंट्स, 92 एलिमेंट्स वो हैं जो हमने नेचुरली बनाए, और 26 एलिमेंट्स वो हैं जो हमारे मैन मेड हैं. ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या हेल्प करता है? इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने में हेल्प करता है. ओके, सो now next topic, next is the so many things we will discuss in this chapter. First we will discuss the history of the periodic table. Okay, next we will discuss the radii, the types of radii. Okay, next we will discuss some periodic properties. Okay,
Periodic properties like ionization energy, electron gain enthalpy, electron affinity, valency. So all these property we will discuss, and some of the questions, or especially that NCERT questions based on them, right? NCERT questions as well. Okay, so first topic of this chapter, that is the historical development of the periodic table. Okay, for the historical development, four scientists we will study. Daubernier, okay, Daubernier triads. Next is the Newland law of octaves. Third is the Laudermeyer, and fourth one is the Mendeleev, right? Okay, Mendeleev of his time, whatever that periodic table he gave, fourth one is the Mendeleev, means that periodic table given by Mendeleev of his time is the, ये सबसे एक्यूरेट और सबसे परफेक्ट पीरियोडिक टेबल थी, क्योंकि इसने न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स जो आगे डिस्कवर होते थे उनका स्पेस भी इसने छोड़ा था. ओके, बट फर्स्ट वी विल डिस्कस वन बाय वन. सो फर्स्ट इज द डोबर्नियर ट्राइड्स और ट्रेड्स, एनीथिंग यू कैन से. सो ट्राइड्स का मतलब क्या होता है? 3, राइट? ट्राई मतलब 3, अ ग्रुप ऑफ 3. तो उसने क्या किया? अरेंजमेंट, ही अरेंज द एलिमेंट्स इन ग्रुप ऑफ 3 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट. इसके टाइम में हमारे पास टोटल 16 एलिमेंट्स कुछ डिस्कवर हुए थे, फाइन. पर इसने जो अरेंजमेंट दिया कुछ फ्यू एलिमेंट्स का ही ये दे पाया. सबसे बड़ी लिमिटेशन तो इसकी टेबल की ये थी. ओके, कुछ 16 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, पर इसमें से ये कुछ फ्यू एलिमेंट्स ही हमें डिस्कवर करके दे पाया. और इसने एलिमेंट्स को डिस्कवर कैसे किया? इसने एलिमेंट्स को डिस्कवर किया ऑन द बेसिस ऑफ एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट पे इसने किया. सो उसने क्या ऑब्जर्व करा? ही ऑब्जर्व दैट द मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, जो मिडल एलिमेंट है उसका मास, उसने सबसे पहले एलिमेंट्स को 3 के ग्रुप में अरेंज किया, तभी ट्रायड्स बोलते हैं. ओके, उसने फिर क्या किया? जो मास ऑफ द मिडल एलिमेंट है वो एवरेज है फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का. सो इसने ये कुछ एलिमेंट्स हमें दिए: लीथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड द बेरियम. फर्स्ट हमारा ये था लीथियम, सोडियम एंड द पोटेशियम. अब इसका क्या मतलब है कि मास ऑफ द एलिमेंट इज द एवरेज. नाउ लीथियम का मास क्या है हमारे पास? 7. पोटेशियम का मास क्या है हमारे पास? 39, राइट? डिवाइडेड बाय 2. 7 + 39 इक्वल्स टू, दैट इज 46, right? 46 divided by 2 is 23. It is wrong here. Mass of the sodium is 23. 11 is the atomic number of the sodium, right? By mistake I wrote the atomic number. So 7 + 39 is the 23. So this is, so means the mass of the sodium is the arithmetic mean or the average of किसका? लीथियम का और पोटेशियम का, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट का और थर्ड एलिमेंट का. ओके, नेक्स्ट में ऑब्जर्व करते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन, राइट? क्लोरीन का मास क्या है? 35.5 plus 127 divide by 2. Now 127, 35.5, 5, 6, 162.5 divided by 2, that is 80, fine, 80.9 something. Okay, so 80.9 means approximately the mass will come as the 80, that is the mass of the bromine. Clear? So bromine also, the mass of bromine also is the average mean किसका हो गया? क्लोरीन और आयोडीन का. Now कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड द बेरियम. कैल्शियम का मास है 40, बेरियम का मास है 137 डिवाइडेड बाय 2, 177 by 2. इसका क्या हो गया? 8. Then again 8.5 something. Okay, so mass of strontium also is 80 point this. So इसने सिर्फ इन्हीं कुछ एलिमेंट्स के लिए हमारा क्या किया था? एक पीरियोडिक टेबल छोटी सी बनाई थी, पर इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थे. उसने क्या कहा था कि उसने सबसे पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में किया, और दूसरा
जो मिडल एलिमेंट है उसका मास फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का क्या होगा, एवरेज होगा। अब नाउ डिस्कस करते हैं कि जो ये एलिमेंट्स थे इनमें ऐसी लिमिटेशंस क्या थी। फर्स्ट तो लिमिटेशन यही थी कि टोटल 16 एलिमेंट्स तो डिस्कवर हुए, राइट, पर उसने दिए कितने, फ्यू एलिमेंट्स ही दिए। दूसरी क्या इसकी लिमिटेशन थी, जो आयरन है, कोबाल्ट है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, ये सारे क्या हैं, सिमिलर एलिमेंट्स हैं, राइट। बट हमें पता है ना ये डी ब्लॉक में सेम रखे जाते हैं, ओके, डी ब्लॉक में ही रखे जाते हैं हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार से। पर ये क्या करा इन्होंने, ट्रायड्स में इनको नहीं रखा। सिमिलरली इसने एक चीज करी, इसने डिससिमिलर एलिमेंट्स को ट्रायड्स में रखा। दूसरी इसकी क्या लिमिटेशन थी, देखो, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। अगर हम इसे भी करें, जैसे नाइट्रोजन का मास 14 आना चाहिए, 12 प्लस 16/2 दैट इज 28/2 इज 14। ये तो ये आ गया, ये फॉलो कर रहा है और ट्रायड फॉर्म कर रहा है, पर इन चारों की प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट हैं, तो ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो ये ट्रायड फॉर्म कर सकते हैं पर इनकी सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। सो ये कुछ लिमिटेशंस थी हमारी डॉबर्नियर की। नेक्स्ट है हमारा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ओके। इन्होंने भी क्या किया, इस साइंटिस्ट ने भी, इस साइंटिस्ट को ना म्यूजिक से बहुत प्यार था, इट इज म्यूजिक लवर, वॉज वेरी ओके। तो इसने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ओके। सो मेंडलीव तक सबसे बड़ी बात, जो साइंटिस्ट थे, और भी साइंटिस्ट आए बट मेनली हम 4 डिस्कस करेंगे। सो उन्होंने सारों ने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया वो एटॉमिक मास पे अरेंज किया था, तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी एटॉमिक मास पे ही डिपेंड करेंगी, ओके। तो उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक मासेस पे, इंक्रीजिंग एंड ऑब्जर्व दैट, उसने भी क्या ऑब्जर्व किया, उसने क्या ऑब्जर्व किया, दैट एवरी एट्थ एलिमेंट वाज अ काइंड ऑफ रिपीटिशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ये उसने ऑब्जर्व किया, कैसे, क्या उसने ऑब्जर्व किया, नाउ लीथियम का होता है 7, नाउ बेरिलियम इज 9, देन 11, देन 14, सॉरी देन 12, देन 14, देन 16, ओके, नाउ फ्लोरीन इज 19, लाइक सो ऑन। ये इसके मासेस हैं 7, 9, 11, फाइन। नाउ हमने क्या देखा, लीथियम के बाद, लीथियम अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो लीथियम के बाद सोडियम की प्रॉपर्टी मैच होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब सपोज बेरिलियम अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो बेरिलियम को हमने फर्स्ट काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देन बेरिलियम की प्रॉपर्टी किससे मैच होगी, मैग्नीशियम की। सिमिलरली बोरोन की होगी आर्गन से, कार्बन की होगी सिलिकॉन से, नाइट्रोजन की होगी फॉस्फोरस से, एंड ऑक्सीजन की सिलिकॉन से। इसी तरीके से मतलब इसके पास इसके टाइम में 50-60 प्लस एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, राइट। तो उसने इन तक का एलिमेंट्स का हमें दिया, ओके। पर क्या हुआ, जैसे मतलब तो इसका क्या हुआ कि एवरी 8th एलिमेंट, तो उसने क्या कहा, every 8th element is similar to first element। इसने ये डिस्कवर किया कि हर 8वां एलिमेंट डिस्कवर है अपने फर्स्ट एलिमेंट से, राइट। लाइक द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहाँ है ना, जैसे हमारी धुन होती है कैसी, सा रे गा मा पा धा नी एंड अगेन सा। अगर हम काउंट करें, देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे हमारे म्यूजिकल नोट्स होते हैं वैसे ही इसने एलिमेंट्स को बोला कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है फर्स्ट एलिमेंट से। बट इसकी भी एक लिमिटेशन आ गई, क्या, इसने अरेंज तो कर दिए इतने एलिमेंट्स तक और कहा सो ऑन, पर देखो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम तो मैच करता है, पर इसने क्रोमियम को कहाँ रख दिया, बोरोन और एल्यूमिनियम के ग्रुप में, जबकि ये कम्प्लीटली रॉन्ग, ये भी कम्प्लीटली रॉन्ग, ये भी कम्प्लीटली रॉन्ग और आगे सारा कम्प्लीटली रॉन्ग। सो इसकी जो
पीरियोडिक टेबल थी ये एटॉमिक मास पे बेस्ड थी, पर इसकी पीरियोडिक टेबल अप टू कैल्शियम तक ही वैलिड हुई, मींस अप टू कैल्शियम हिज पीरियोडिक टेबल राइट इज वैलिड अप टू कैल्शियम, क्योंकि आफ्टर कैल्शियम एलिमेंट्स सारे डिफर होते गए। ओके क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं? इट इज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम दैट इज whose atomic mass is 40 and atomic number is 20. This is atomic number. फाइन. इट फेल्ड विद द एलिमेंट्स बियॉन्ड कैल्शियम. जो कैल्शियम के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, कैल्शियम के बाद के सारे एलिमेंट्स, इनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं होती. नेक्स्ट, टू एलिमेंट्स प्लेस टुगेदर इन अ सिंगल सेट. देखिए इसके अंदर अब इसने दो एलिमेंट्स को इसमें रख दिया, ठीक है, जबकि ये भी चीज रॉन्ग है, इसकी प्रॉपर्टीज इनसे मैच नहीं होती. स्टिल इसने दो एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में रख दिया, इनका डिफरेंट डिफरेंट प्लेस होना चाहिए. लाइक सीरियम एंड लेंथेनम, इसने इसको रख में रख दिया, जबकि ये ऐसा नहीं है. एक और चीज थी, ऑल्सो डिड नॉट गिव प्लेस टू न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट. इसने जो नए, हमने कहा जैसे 60+ एलिमेंट्स उस टाइम डिस्कवर हो चुके थे, उसने न्यूली एलिमेंट्स का प्लेस इसमें नहीं छोड़ा. तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे हमारे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की. वो भी किस पे था? हमारा अरेंज था एटॉमिक मास के ऊपर, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. और उसने भी क्या कहा था? क्या कहा था? एवरी एट्थ एलिमेंट वाज अ काइंड ऑफ रिपीटिशन ऑफ द फर्स्ट. Now we will discuss the two more remaining classification of the periodic table, that is the Lauder-Meyer curve and the Mendeleev periodic table. So now what is the Lauder-Meyer curve? One scientist named Lauder-Meyer gave one curve or a graph. Okay, he studied, so what he said, he studied or he observed the physical properties of the elements. Physical properties, that means melting point, boiling point, density, volume. Okay, all these physical properties he studied, and he plotted a graph in between the atomic volume and the atomic mass. So by plotting the graph of the different elements, okay, he observed some of the points based on this. Okay, so what are these points from this curve? What he observed? First, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया? द अल्कली मेटल्स. अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं हमारे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम. क्या पॉइंट सबसे पहले ऑब्जर्व किया? ऑक्यूपाई द पीक्स of the curve or maxima of the curve. Peaks means which are on the top, right? This is called as the peaks. So what are that? Lithium, right? One element is the lithium, the next is the sodium. As we can see, they are occupying lithium, sodium, potassium, rubidium, and one more is there which is not given, that is the cesium. They all are occupying the maxima of the curve. So first point observed is this. Next what it's observed, that alkaline earth metals. कौन कौन से होते हैं हमारे alkaline earth metals? Means group 2. ये हो गया group 1 हमारा, और ये हो गया group 2 हमारा. Okay, कौन से? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम. इसने क्या ऑक्यूपाई किया था? डिसेंडिंग पोजीशन. डिसेंडिंग पोजीशंस when we go down. Okay, when we go down. See, beryllium, one of element, we'll choose the different color for this. Beryllium, then magnesium. See, they are the descending positions of the curve. This is also the descending position of the curve. Okay, now beryllium, magnesium, calcium also descending position of the curve. Then strontium, and then barium also is there. Fine. So the alkali metals occupy the maxima of the curve. Alkaline earth metals occupy the minima of the curve. Next, the halogens, or we can say the electronegative elements. Halogens are also called as the electronegative elements. वो क्या occupy करते हैं? ascending position. ये क्या था? घटती हुई, और ascending means बढ़ता हुआ. Okay, fluorine, chlorine, bromine and iodine. See, fluorine is kept here. Okay, fluorine is kept here. Then chlorine,
from the ascending position. See, this is the ascending position, this is also ascending position. It is bromine. One more is there which is not given, that is iodine. Bromine and iodine. Okay, one more he observed. क्या कहा था इसने? The transition elements occupy the minima of the curve, that is minima of the curve. What are the transition elements? Iron, cobalt, nickel, zinc. ये देखो, ये सारे के सारे ये क्या ऑक्यूपाई कर रहे हैं? ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं मिनिमा ऑफ द कर्व, मिनिमा ऑफ द कर्व. सो उसने किसके बीच ग्राफ किया? लॉदमेयर ने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच किया, और उसने ये 4 पॉइंट्स किए कि अल्कली मेटल्स मैक्सिमा पे मिलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हमें डिसेंडिंग पोजीशन घटती हुई, और हेलोजन्स हमारे असेंडिंग पोजीशंस जो बढ़ती हुई होती है, और ट्रांजिशंस हमारे जो मिनिमा ऑफ द कर्व होता है उस पर हमें ऑब्जर्व होते हैं. ओके, सो ये तो हमारा था लॉदमेयर अरेंजमेंट. अब आया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. मेंडलीव उस टाइम का सबसे सक्सेसफुल था इन गिविंग अस द पीरियोडिक टेबल ऑफ दैट टाइम. ओके, वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल था. उसके टाइम तक हमारे 63 एलिमेंट्स नोन थे, 63 एलिमेंट्स नोन थे, और उसने सबको, इन ऑल 63 एलिमेंट्स को अपनी पीरियोडिक टेबल में जगह दी थी, जो पीरियोडिक टेबल हमारी इस तरह की है. ओके, उसने सभी 63 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में जगह दी थी, और उसने क्या किया था, और ज़्यादा अच्छा क्या किया था, जो कुछ अननोन एलिमेंट्स थे, जैसे यहाँ ये अननोन एलिमेंट्स, ये स्कैंडियम भी अननोन था, जर्मेनियम भी अननोन था, ये वाला भी अननोन था, ये सारे नोबल गैसेस. ओके, ये नोबल गैसेस भी अननोन थे. ओके, ये जो थे हमारे यूरेनियम, थोरियम, एक्टीनियम, ये सारे क्या थे? लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ये भी अननोन थे. तो कुछ न्यू एलिमेंट्स और अननोन एलिमेंट्स, उनको भी उसने उसके अंदर जगह दी, खाली स्पेसेस छोड़े. ओके, ताकि हम क्या कर सके, जब बाद में उसकी प्रॉपर्टीज रिवील हो, बाद में जब उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कवर हो, तो हम उन एम्प्टी स्पेसेस में उनको फिल कर सकें. राइट. ओके, तो इसने क्या किया था, उसने मेंडलीव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव टेबल. उसने क्या दिया था? उसने टोटल हमें 8 ग्रुप्स दिए थे. 8 ग्रुप्स, वही सेम जैसे हमारे पीरियोडिक टेबल थे, 8 वर्टिकल ग्रुप्स. ओके, और उसने क्या दिए थे? 7 पीरियड्स, पर एक्चुअल में ये 6 पीरियड्स थे. 7 पीरियड्स वो कैसे थे? हॉरिजॉन्टल. ओके, और उसने हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया था, ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड किया था. उसने कैसे दिया था? सपोज ये फर्स्ट, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ, ये हमारी पीरियोडिक टेबल थी. राइट. ये उसने हमें पीरियोडिक टेबल दी. राइट. और इन सब क्या कहते हैं, उसको ग्रुप्स को, पहले हम इसके पीरियड्स के नाम लिखते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. राइट. तो इसने क्या किया था? इसने हर पीरियड को, हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया. राइट. कैसे डिवाइड किया? ए, बी. ठीक है, ए, इसमें भी इसने क्या किया? ए, बी. ये भी ए, बी, ए, एक्सेप्ट द 8th ग्रुप. इस 8th ग्रुप को इसने डिवाइड नहीं किया था. इस 8th ग्रुप में इसने क्या किया था? जो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ओके, ओस्मियम, रुदेनियम, ये सारे के सारे इसने ट्राइड्स के रूप में इसने इस 8th ग्रुप में प्लेस कर दिए थे. इसने इनको कोई मतलब ग्रुप्स में नहीं बांटा था कि आयरन इसमें आएगा, कोबाल्ट इसमें आएगा. उसने तीनों को इकट्ठे साथ एक ग्रुप में रख दिया था. 5th को भी ए, इसको भी ए, बी, इसको भी ए, बी. राइट. तो इसने ऐसे करके एक हमें पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड करी थी. ओके, सो जो सारे के सारे 63 एलिमेंट्स थे उसको इसने अरेंज किया. अब इसकी पीरियोडिक टेबल का बेसिस क्या था? एक्चुअल में साइंटिस्ट ने क्या किया था? इसने 63 कार्ड्स लिए. ओके, 63 कार्ड्स लिए ऐसे ऐसे.
ओके। सो उन सारे कार्ड्स पे क्या किया उसने, हर एलिमेंट का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किया, और केमिकल प्रॉपर्टीज को जज करने के लिए, केमिकल प्रॉपर्टीज को पता लगाने के लिए इसने उनकी रिएक्शन किससे करवाई, ऑक्सीजन से और एंड हाइड्रोजन से। क्यों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से करवाई? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, वो मोस्टली सारे के सारे एलिमेंट से, ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट से ये रिएक्ट करते हैं। तो उनके ऑक्साइड एंड उनके हाइड्राइड का क्या किया इन्होंने, इसने फॉर्मूला लिखा। ओके इसने क्या किया, हर कार्ड के ऊपर ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला लिखा। फॉर एग्जांपल अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करें, सोडियम की बात करें, तो सोडियम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaH। ओके एंड ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा Na2O। मैग्नीशियम की बात करें, इसके हाइड्राइड का फॉर्मूला हो जाएगा MgH2। ओके और इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके सो ऐसे ऐसे करके उसने 63 कार्ड्स लिए और उसने इसको एक बोर्ड पे लगा दिया, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे करके सारे कार्ड्स उसने एक बोर्ड पे लगा दिए। और उनको फिर क्या किया, प्रॉपर्टीज वाइज अरेंज किया। जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के थे उसको एक ग्रुप में रखा, दूसरे को दूसरे ग्रुप में रखा, तीसरे को तीसरे ग्रुप में रखा। तो लाइक वाइज करके उसने ऐसे ऐसे 63 कार्ड्स लिए और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से उनका रिएक्ट करवाया, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेक की और फिजिकल प्रॉपर्टीज अदर चेक की, लाइक एटॉमिक रेडियस फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट चेक किया, बॉइलिंग पॉइंट चेक किया, वॉल्यूम चेक किया। तो उनको चेक कर करके ये सब करके उनके 63 कार्ड्स को ऐसे बोर्ड पे पेस्ट कर दिया, राइट। और ऐसे जो जो सिमिलर होते गए उन्हें अलग रखा, जो डिसिमिलर होते गए उनको अलग रखा। इसने क्या किया, जो अननोन कुछ एलिमेंट्स थे, फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ी इसकी अचीवमेंट क्या थी, जैसे इसने एक एलिमेंट था बोरोन, बोरोन किया, बोरोन के नीचे एक स्पेस इसने खाली छोड़ दिया। ओके इसकी प्रॉपर्टीज हमें पता नहीं थी, पर उसने ये पता लगाया कि बोरोन के नीचे एक एलिमेंट आएगा जिसको उसने नाम दिया एका बोरोन। एका क्या, का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा और वन। ओके सेम और सेम ऑल्सो हम इसको बोल सकते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी इसकी थी, राइट। ओके ये क्या, नेक्स्ट उसने क्या किया, सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे एक प्लेस एंटर किया। मैं बस एक में रख रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि 5th ग्रुप में है या 4th ग्रुप में है, एक मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। सिलिकॉन में इसने क्या किया, उसका नाम लिख दिया एका सिलिकॉन, राइट। ओके नेक्स्ट उसने इसके अंदर क्या किया, हमारा एक था एल्यूमिनियम। ओके तो एल्यूमिनियम के नीचे भी उसने करा, तो एका एल्यूमिनियम, राइट। मतलब इसने क्या किया, कुछ तो ऐसे ब्लैंक्स छोड़ दिए जिनको उसने ये नाम दिया एका बोरोन, एका सिलिकॉन एंड एका एल्यूमिनियम, जो बाद में हमारे डिस्कवर हुए। तो एका बोरोन जो हमारा बाद में डिस्कवर हुआ वो कौन सा था, स्कैंडियम, राइट। और जो सिलिकॉन के नीचे था दैट इज जर्मेनियम। ओके दैट इज जर्मेनियम। और जो एका एल्यूमिनियम के नीचे था गैलियम। ओके गैलियम। ओके ये सब डिस्कवर हुए। बाद में उसने और सब क्या किया, और उसने कुछ अननोन एलिमेंट्स के लिए स्पेस छोड़े, जो बाद में जैसे जैसे उनकी प्रॉपर्टीज पता लगती गई वैसे वैसे हमने उसको फिल किया। ये उस टाइम की सबसे सक्सेसफुल, सबसे एक्यूरेट पीरियोडिक टेबल थी, राइट। उसके बाद उसने क्या किया, एक हमारे पास आई थी मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उस मॉडिफाइड मेंडलिक पीरियोडिक टेबल में क्या था, अब इसकी मेंडलिक पीरियोडिक टेबल में तो ये सब चीज़ें थी, यहाँ तक के एलिमेंट्स थे, राइट। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये सेकेंड ग्रुप, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ओके ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ और ये एट्थ को इसने ट्राइड्स के रूप में रखा। जैसे देखो आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये यहाँ इसने यहाँ ये दे रखे, ये नहीं थे, ये सिर्फ इन्होंने एक ट्राइड के रूप में इनको रखा हुआ था। रोदीनियम, रोबीडियम, रोडियम, ऑस्मियम, इरिडियम और द प्लेटिनम, ये 7 उसने रखे हुए थे, राइट। नेक्स्ट इसने क्या किया था, इसने लेंथेनाइट्स के लिए स्पेस छोड़ा। एक्टेनाइट्स का क्या किया, बाद 2 सेपरेट रूप में यहाँ हम रखते हैं। दूसरा, तब तक उसके टाइम तक, मेंडलीव के टाइम तक नोबल गैसेस वर अननोन। ओके उसके टाइम तक नोबल गैसेस अननोन थी। जब बाद में नोबल गैसेस आई तो उसमें उस मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने हो गए, उस मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर हो गए 9 ग्रुप्स
एंड 7 पीरियड्स। सेम 9 ग्रुप्स कौन सा हो गया, एक और ग्रुप ऐड हो गया जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये नोबल गैसेस। ओके, जिस ग्रुप को हम बोलते हैं जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप। ओके, सो मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स थे, 9 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स, जबकि मेंडलीव टेबल में कितने ग्रुप्स थे, 8 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। और जब मेंडलाइव पीरियोडिक टेबल थी 1 to 7 डिवाइडेड था ए और बी सब ग्रुप में, बट 7 पीरियड्स, बट जो एट्थ ग्रुप था, एट्थ ग्रुप को इसने डिवाइड नहीं किया था। ओके, सो ये थी हमारी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो क्या क्या इसकी सिग्निफिकेंस थी, मतलब हमने क्या देखा इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। सबसे पहले मेंडलीव ने तो क्या कहा था, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स। ओके, सारे एलिमेंट्स की सिस्टमैटिक प्रॉपर्टी वाइज, property wise we can study the elements, we can study each and every element, right? ये सबसे बड़ा था। दूसरा, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। ओके, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स दैट मीन्स ए का बोरोन, राइट, ए का सिलिकॉन, राइट, ए का एल्यूमिनियम। ओके, तो इसने ये सब इसमें नाम दिए थे। दूसरा, नोबल गैसेस के लिए इसने स्पेस छोड़ा। दूसरा, लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स के लिए इसने स्पेस छोड़ा। तो ये था। नेक्स्ट इसकी एक और हमारी सिग्निफिकेंस थी और इसका एडवांटेजेस थे, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स। ओके, इसने कुछ एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट्स पहले रॉन्ग था उसने उसको सही किया। फॉर एग्जाम्पल बेरीलियम, बेरीलियम का फर्स्ट एटॉमिक वेट था 13.5 प्रीवियस। ओके, प्रीवियस, जो कि रॉन्ग है, करेक्टेड वन। 9 इज द करेक्टेड एटॉमिक वेट ऑफ बेरीलियम, राइट। सिमिलरली बोरोन का एटॉमिक वेट इज 11 एटॉमिक वेट। ओके, तो उसने क्या, हमारी 3 सिग्निफिकेंस थी। एक तो उसने सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स की, कितने एलिमेंट्स की स्टडी, एलिमेंट्स की 63 एलिमेंट्स की, राइट। कुछ न्यू एलिमेंट्स हमारे, बोरोन को हम क्या बोलेंगे, स्कैंडियम, जो ए का बोरोन स्कैंडियम, ए का सिलिकॉन क्या था हमारे पास, जर्मेनियम, राइट, और ए का एल्यूमिनियम क्या था हमारा, गैलियम। ओके, इन सब का स्पेस यहाँ लेफ्ट किया, राइट, जो बाद में डिस्कवर हुआ और उसी प्लेस पे हमने रखा, राइट। और उसने और कुछ न्यू प्लेसेस, न्यू एलिमेंट्स के लिए स्पेस छोड़े। जब बाद में उसकी केमिकल एंड प्रॉपर्टीज रिवील हुई तब उसमें हमें फिल किया गया। करेक्शन ऑफ सम डाउटफुल एटॉमिक वेट्स ऑफ सम एलिमेंट्स, कौन से, बेरीलियम का, बोरोन का, राइट। अब आती हैं उसकी कुछ लिमिटेशंस। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट है हमारा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। लिसन, हाइड्रोजन की 2 हम उसमें रख सकते हैं। एक, हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड इन ग्रुप फर्स्ट ए, ऑल्सो इट कैन बी प्लेस्ड इन द ग्रुप 7th ए, राइट। सो बोथ इट कैन रिसेंबल्स बोथ अल्कली मेटल्स, राइट, एज वेल एज द हेलोजेंस। सो इसकी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अब तक अननोन है, राइट। जैसे हमने यहाँ एलिमेंट्स रखे ना, तो उसने कैसे रखे, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ऐसे इसने एलिमेंट्स रखे। और साथ ही ग्रुप बी में कोई अननोन ही एलिमेंट्स रखे। अननोन एलिमेंट्स है फॉर एग्जांपल कॉपर, ठीक है, कॉपर रख दिया। और दूसरा इसने क्या रख दिया, सिल्वर रख दिया, जिनकी कंप्लीटली प्रॉपर्टीज डिफरेंट किससे थी, ए से। जो ए में रखे वो तो प्रॉपर्टीज उसकी सेम थी, जो बी में रखे बी की भी सेम थी, पर बी की प्रॉपर्टीज और ए की प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट थी ए और बी से। ये भी इसकी एक लिमिटेशन थी, राइट। ओके, ये भी इसकी एक लिमिटेशंस थी। नेक्स्ट क्या है, अनॉमलस पेयर्स ऑफ द एलिमेंट्स। अनॉमलस पेयर ऑफ, कुछ डिफरेंट पेयर ऑफ एलिमेंट्स इसने सेम ग्रुप में रख दिए। फॉर एग्जांपल, कुछ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक वेट हायर था, वो उसने, जिनका एटॉमिक वेट लोअर था, वो हायर एटॉमिक वेट के बाद में रखे। फॉर एग्जांपल आर्गन एंड द पोटेशियम। आर्गन का एटॉमिक वेट है 40 एंड पोटेशियम का एटॉमिक वेट है 39, क्योंकि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का बेस क्या था, एक तो उसने हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के एलिमेंट रखे। फॉर एग्जांपल ऐसे हाइड्राइड्स लाइक RH, R2O, RH2, RO,
राइट। ओके, ये इसने रखे RH3, ये क्या हो जाएगा R2O3, राइट, ये सब इसने रखे। नेक्स्ट R2O3, राइट। इसका बेसिस क्या था, इसने प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट स्टडी की ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस, राइट, एटॉमिक मासेस। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फिजिकल एंड chemical properties of the elements, right, are a periodic function of their atomic masses, right, means they can be repeated at certain regular intervals, like after one element or two elements or three elements, but on the basis of their atomic masses, means their properties are repeat on the are a periodic function of their atomic masses. So in this what happen, आर्गन का atomic weight है 40 and पोटेशियम का weight है 39। तो इसके हमने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ atomic weights में, इंक्रीजिंग ऑर्डर it should be इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ atomic mass, right। सो पोटेशियम का पहले आना चाहिए, देन आर्गन का आना चाहिए, पर इन्होंने क्या किया था, आर्गन का फर्स्ट दे रखा है, देन पोटेशियम का दे रखा है। सिमिलरली इसने क्या किया हुआ है, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कोबाल्ट निकल। ओके, कोबाल्ट का एटॉमिक वेट है 58.9, ओके, निकल का एटॉमिक वेट है 58.6। उसके हिसाब से पहले निकल का आना चाहिए, देन कोबाल्ट का, पर उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट का पहले दिया, निकल का बाद में दिया, राइट। मीन्स आर्गन प्रीसीड कर रहा है पोटेशियम से, जबकि पोटेशियम को आना चाहिए इससे। सिमिलरली हमारा टेलूरियम और आयोडीन का हुआ, आयोडीन का एटॉमिक वेट है 126 और इसका है 127, तो आयोडीन पहले आना चाहिए, बट इन्होंने टेलूरियम। सो दीज आर सम आर्गन, पोटेशियम, cobalt, nickel, tellurium, iodine. These are some anomalous pairs of the elements. This is also one disadvantage of this. Now position of the isotopes. Now what are the isotopes? Isotopes are the elements, as we know, which have the same atomic number but डिफरेंट क्या होता है इसमें, मास नंबर डिफरेंट होता है। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें कि जो हमने फर्स्ट ए ग्रुप में रखा है, अब हाइड्रोजन का आइसोटोप एक होता है मास 1, एक होता है मास 2 और एक होता है मास 3, राइट। तो इसके लिए, या कार्बन का हम बात करें, एक आइसोटोप होता है 12, एक 13 और एक 14। तो मतलब हर आइसोटोप को तो डिफरेंट जगह चाहिए, क्योंकि उसने मास इसके में अरेंज किया है, पर कार्बन के लिए तो एक ही जगह है उसकी पीरियोडिक टेबल में, तो ये इसका एक और लिमिटेशन हो गई। उसने पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स डिटरमाइन नहीं की थी। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8, अभी मैंने आपको बताया, ये जो 8th ग्रुप का एलिमेंट है, ये वाला आयरन, कोबाल्ट, निकल, रुदीनियम, रुबीडियम, रोडियम, सॉरी not rubidium, right, it is palladium, it should be rubidium, rhodium, Rh, okay, this is Ru, Rh and Pd, palladium। इन 3 एलिमेंट्स, या आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये जो 8th एलिमेंट के थे, कौन कौन से 8th एलिमेंट के थे, हम यहाँ लिखते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, राइट। नेक्स्ट इसमें क्या हो गया हमारे पास, नेक्स्ट इसके क्या हो गए, रुदियम, रोडियम एंड द पैलेडियम। नेक्स्ट ऑस्मियम, इरिडियम एंड प्लेटिनम। ये उन्होंने इसकी कभी भी हमें ये नहीं किया, इसने एक ट्रायड्स के रूप में नहीं रखा, एक ही ग्रुप में। इन्होंने ये नहीं बताया ये कौन से ग्रुप में आएंगे, राइट। इट डज नॉट, he does not give information about their groups, right।
ओके, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। दूसरी, पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड्स एंड द एक्टिनाइड्स इन द मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इनको सेपरेटली पीरियड के टेबल के बाहर दो ब्लॉक्स में रखा हुआ था, इन 14 और 14 एलिमेंट्स को। इनके लिए भी पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं थी। नेक्स्ट एंड लास्ट, सम डिसिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर while some similar elements are placed in the different group. फॉर एग्जाम्पल देखो, लीथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे क्या हैं, ये अल्कली मेटल्स हैं। ये हम एक ग्रुप में रख सकते हैं जो इसने फर्स्ट एक ग्रुप में रखे। बट इसने, अभी मैंने क्या बताया, जैसे ये ग्रुप ए, इसने फर्स्ट को क्या ए में डिवाइड किया और बी में डिवाइड किया, दो ग्रुप्स में। बट इसने फर्स्ट बी ग्रुप में क्या रख दिए, इसने फर्स्ट बी ग्रुप में रख दिए कॉपर, ओके, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, जिनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट? और वी कैन से देयर प्रॉपर्टीज आर completely different from each other, राइट? इनकी प्रॉपर्टीज completely different थी इनकी, फिर भी इसने क्या किया, इनको सेम ग्रुप में रखा। while some similar atoms are placed in different group, इसके लिए इसने क्या किया था, कॉपर जो इसने फर्स्ट बी ग्रुप में रखा, Hg मीन्स मरकरी जो इसने सेकंड बी ग्रुप में रखा। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम, ओके, सेम, देयर प्रॉपर्टीज आर सेम, बट स्टिल he kept them in different groups, राइट? ये कुछ इसकी क्या थी, लिमिटेशंस थी, राइट अबाउट ओनली टोटल 6 लिमिटेशंस। मीन्स जो हमने सारी की सारी पीरियोडिक टेबल्स अभी तक करी, हमने 4 पीरियोडिक टेबल डिस्कस करी, एक डॉबर्नियर की करी, ओके, नेक्स्ट हमने किसकी करी थी, न्यूलैंड करी, थर्ड हमने कौन सी करी, लोदरमेयर की करी, फोर्थ हमने कौन सी करी, मेंडलीव की। एक चीज़ आप ध्यान रखना कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो पहले आई थी लोदरमेयर की, बट स्टिल जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसको सबसे ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, ओके, राइट? बिकॉज he gave places to that unknown elements, right? He discovered some new elements also, he gave the correct places of some elements because of some these properties. And all these periodics means in all these periodic tables whatever those scientists discovered, इनके अंदर जो basis था वो क्या था, हमने atomic mass को माना है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे उसके अंदर हम एटॉमिक नंबर को कंसिडर करते हैं, राइट? पर इन चारों में हमने किसको माना है, एटॉमिक मास को, राइट?